I welcome you all at the Thinking Palette platform. Today, in the Simply Explained series, I will talk about judicial review. But before going into the deep of this video, first try to understand that what are the different points I am going to cover. For example, the first thing which you need to understand that what is judicial review. Then I will talk about the origin of judicial review. After that, I will move to Indian context and we will look into that what are the different articles and what is the scope of judicial review in the context of India. Then I will also make a comparison with the judicial review in USA with India. And lastly, the relationship between the ninth schedule and judicial review will be discussed. And along with this, I will talk about two different kinds of test. First is right test, and second is essence of right test. Okay, most of you have not heard these two different types of test which is being used to examine the different elements whether they are qualified to be the part of basic structure or not. So we will focus on these two different types of test. But before going into the origin of judicial review, just for the understanding of the judicial review, however, we will go into detail also in our third slide. But in a very simple term, this simply means that the judiciary is reviewing something. Then what are those things that is being reviewed by judiciary? They are reviewing the legislative acts of the parliament and state legislature. Secondly, they are reviewing the administrative directions of the officers, and they are also reviewing the subordinate legislation. For example, each and everything that has an impact on the law or that is resulting into the inaction of certain kind of law, it will be reviewed by the judiciary that whether such law is valid or invalid. Okay. सो नाउ आई एम मूविंग टू द ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अब देखो यहाँ दो चीज है. एक है थॉमस जेफरसन. You all know that he was the American president, and he is also an American president, that is the former American president, that is Adams. Okay, what happened that in 1803 there was an election in USA, and in that election Thomas Jefferson has won the election and Adam was defeated, and therefore he is sitting sad. But then after that Adams thought कि मेरी पावर तो जा रही है, जेफरसन जीत गया, तो अब मैं क्या करूं? मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं जिससे मेरी पावर बरकरार रहे. तो इसने क्या किया? इसने ना जजेस का सिलेक्शन शुरू कर दिया. अपने जो भी इसके अपने लोग थे उनको ये जज बनाने की कोशिश किया. इसने सोचा कि अच्छा चलो इस तरीके से पावर नहीं है तो जजेस के थ्रू हम पावर अपना एब्जॉर्ब करते हैं पूरे सिस्टम पे. इसी के कंटेक्स्ट में ऐसा हुआ कि इसने एक मरबरी नाम के आदमी को भी सिलेक्ट किया था कि वो भी जज बनेगा. लेकिन फिर जेफरसन ने सोचा कि मेरे जीतने का मतलब ही क्या है? अगर एडम सबको जज बना दे तो मैं क्या करूंगा? तो जेफरसन ने क्या किया? अपने सेक्रेटरी मैडिसन को बोला कि किसी भी आदमी को तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना है. किसी भी आदमी का मतलब जो भी एडम्स ने जज के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, उन किसी को अपॉइंटमेंट लेटर तुम नहीं दोगे. तो मेडिसन ने बोला जी हुजूर, क्योंकि सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही इज द प्रेसिडेंट. लेकिन ये मलबेरी को क्या हुआ? इसने बोला कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है तो मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और द फेडरल कोर्ट. तो वो चला गया कोर्ट में. अब इस कोर्ट में मार्शल नाम का जज था. मैरबरी मार्शल को बोलता है कि अकॉर्डिंग टू जुडिशियरी एक्ट 1789 आप मैंडेमस इशू करो मेडिसन को कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है. अब तुम सबको पता है कि मैंडेमस क्या होता है. मैंडेमस एक रिट पिटीशन है. ओके, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 32 में 5 तरीके के रिट पिटीशन है. उसमें से एक मैंडेमस है. मैंडेमस का मतलब है जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं करता है तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड कैन आस्क टू इश्यू मैंडेमस अगेंस्ट हिम. तो यही मैरबरी ने भी बोला मार्शल को. मार्शल ने बोला कि मैं क्यों दूं भाई मैंडेमस,
मैं नहीं दूंगा मैंडेमस। तो मैरवेरी बोलता है कि जुडिशियरी एक्ट 1789 के अकॉर्डिंग आपको मैंडेमस देना पड़ेगा। तो इस जज को गुस्सा आ गया, इसने बोला अच्छा रुको, मैं जुडिशियरी एक्ट 1789 को ही चेंज कर देता हूं। और उस समय मार्शल जो जज थे उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में इनवैलिड है मैंडेमस इशू करना, और मैं इसलिए पुराने एक्ट को, पुराने लॉ को रिव्यू करने जा रहा हूं। तो समझ गए, इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन है। तो जुडिशियल रिव्यू यूएसए। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड स्लाइड ऑफ द जुडिशियल। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि ठीक है भैया, जुडिशियल रिव्यू, व्हाई जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू करना क्यों है? तो उससे पहले तुम सबको पता है कि 3 टाइप की ऑर्गन्स है हमारी गवर्नमेंट की। लेजिस्लेचर जो प्राइमरी फंक्शन इसका लॉ मेकिंग है। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकता है। ओके, जो खुद में एक तरीके का लॉ है। तीसरा ये है, जब मैंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात की थी कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा लेकिन डेलीगेट कर देगा कि चलो कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लॉ बना सकता है, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब जुडिशियरी का काम क्या है? देखना कि जो लॉ है वो वैलिड है या वायड है। ओके, अब इन्होंने तो अब ये हीरो है सारे, मोदी जी हीरो है हमारे, पार्लियामेंट हीरो है क्योंकि ये लॉ बनाएगा। ठीक है, अब ये लॉ इन्होंने बना दिया, ये बड़े खुशी मना रहे थे कि हमने तो लॉ बना दिया और जो हम कह देंगे वो हो जाएगा। अब आगे हमारे सीजेआई साहब, जुडिशियरी, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं चेक करूंगा कि तुम्हारा जो लॉ बनाए हो तुम वो वैलिड है कि वर्ड है। तो मोदी जी ने पूछा तुम हो कौन? तो सीजेआई ने बोला मैं हूं बाहुबली, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो फिर मोदी जी भी पूछेंगे क्योंकि मोदी जी भी पार्ट है गवर्नमेंट के। उन्होंने बोला कैसे, मुझे, मैं हूं बाहुबली, ऐसे बोलने से हर कोई बाहुबली हो जाएगा? तो बोला अच्छा, सीजीआई ने बोला रुको मैं बताता हूं मैं कैसे हूं बाहुबली। तो उन्होंने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 17 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इम्प्लिसिटली बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो मोदी जी ने बोला अच्छा चलो 4-5 मुझे आर्टिकल बताओ। तो फिर मैं भी देखूं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13, 32, 131, 132, 133, 134, 135। तो मोदी जी ने बोला अरे रुक जाओ, ठीक है, समझ गया मैं, तुम्हारे पास जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है। वैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं अप टिल 372। ओके, 251, 254, 227, there are different articles that is implicitly supporting the judicial review। समझ में आया? तो फिर मोदी जी ने बोला ऐसा है, अगर सब आर्टिकल तुम्हें जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रही है, कुछ तो स्कोप बताओ कि जो मैं कुछ कह दूंगा उसमें तुम जुडिशियल रिव्यू लगा दोगे। तब कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम 3 चीजों में देखेंगे आपका लॉ। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो फिर जुडिशियल रिव्यू करेंगे। दूसरा, कि मान लो किसी ए अथॉरिटी को पावर है लॉ बनाने का, लेकिन ए ने नहीं बनाया और इसका सबऑर्डिनेट बी ने बना दिया, तो फिर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि हु हैज द अथॉरिटी टू मेक द लॉ। इन दिस केस ए हैज द अथॉरिटी बट द लॉ इज बीइंग मेड बाय और इनएक्टेड बाय बी, ये हम नहीं होने देंगे। इस केस में हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो वायलेट नहीं हो रहा हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन वायलेट होगा तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो मोदी जी ने बोला अच्छा, घुमा फिरा के आप हर केस में जुडिशियल रिव्यू कर ही दोगे, सब आपके मन के ऊपर है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, टू एंश्योर द फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एंड सेकेंडली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, थर्डली टू रूल ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। यही है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कौन कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने का। समझ गए? ये है स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, अब देखो हमने पिछले वाले स्लाइड में क्या देखा, स्कोप देखा जुडिशियल रिव्यू का। लेकिन जब स्कोप देखा हमने जुडिशियल रिव्यू का तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि हम अपने स्कोप को, मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में जो जुडिशियल रिव्यू है उसके स्कोप को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो उनसे एक बात निकल के आया कि हम जब भी जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं या इंडियन जुडिशियरी जब जुडिशियल रिव्यू कर रही है तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग कर रही है,
और जो अमेरिकन कोर्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग कर रही है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट बिफोर दैट जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड इट्स ओरिजिन। अब ओरिजिन में तुम्हें लगता होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का ओरिजिन जो है वो यूएसए में है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्लॉज 33 ऑफ मैग्ना कार्टा इन यूके, यहां पर सबसे पहली बार ये लिखा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, यूके ने इसका यूज बंद कर दिया और यूएसए में ये स्टार्ट और चलता रहा। समझ गए? तो ये अंतर है आपका ओरिजिन में। हर कोई जानता है कि यूएसए में नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब क्या हुआ कि यूएसए में एक बार 14th अमेंडमेंट एक्ट हुआ और 5th अमेंडमेंट एक्ट हुआ। अगर इन दोनों एक्ट को इफ यू विल रीड दिस देन यू विल फाइंड दैट द अमेंडमेंट सेज नो वन कैन डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। मतलब कि आप किसी का लाइफ लेना चाहते हो, उसकी लिबर्टी लेना चाहते हो, उसका प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ से लेना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? इट सिंपली मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार खरीदा 2010 में, 2015 और 16 में या 2020 में ले लो, गवर्नमेंट ने कहा कि जिसने भी व्हीकल 2011 से पहले खरीदा है उनको इन्वायरमेंटल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बेसिकली मेरा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो देन आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम इन यूएसए, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, then I will go to the American Supreme Court and that court will examine my case according to due process of the law। इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं इसको कोरोलरी के टर्म में समझूं तो अगर मैं ये कहूं if there is no any government action, if there is no any government action or if there is no any deprivation, दोनों अगर नहीं हुआ, deprivation of simply life, liberty, property, then there cannot be due process of the law। कह सकते हैं ना, अरे कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। समझ गए? ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब हम समझेंगे कि दो प्रकार का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या, सब्सटेंसिव ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो सब्सटेंसिव ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहां लिया है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि एग्जामिन कैसे यूएसए के कोर्ट करते हैं। अंडरस्टूड? सो नाउ यहां देखो क्या है, डज द स्टैट्यूट डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ फंडामेंटल राइट। मान लो कि अमेरिका में एक लॉ बना और वो लॉ किसी का फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर कर रहा है, तो वहां पर एग्जामिन होगा इफ यस द लॉ इज टेकिंग द राइट, देन दूसरा चीज देखा जाएगा कि क्या गवर्नमेंट बहुत मजबूर थी क्या ऐसा करने के लिए। तो अगर उसका भी जवाब यस आया तो फिर देखा जाएगा कि क्या गवर्नमेंट कुछ और कर सकती थी क्या, लॉ नहीं लाके कुछ पॉलिसी लाकर, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन लाके कुछ ऐसा कर सकती थी। अगर उसका जवाब आया कि नहीं नहीं लॉ तो बहुत जरूरी था इस समय में, तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके, देन इन दिस केस दैट लॉ पासेस द this law passes the due process of the law। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के जो एग्जामिनेशन है उसमें ये लॉ पास कर गई। अगर जुडिशियरी को लगा कि नहीं नहीं लॉ बनाने से अच्छा था कि कुछ और कर देते तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, तब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ नहीं लगाती। ये है सब्सटेंसिव प्रोसेस और सब्सटेंसिव ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अंडरस्टूड? अब ये प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन स्टेट्स सीक टू डिप्राइव द पीपल ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रोसीजर देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूएसए का, उसमें देखा जाता है कि प्रोसीजर क्या था, जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आया? यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ।
अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है और वो कैसे डिफरेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ से। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है क्या। तो इट मीन्स दैट ए लॉ दैट इज ड्यूली इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर or the concerned body is valid if it has followed the correct procedure। अगर लॉ बन गया इंडिया में तो उसकी इंटेंट नहीं देखी जाएगी कि वो लॉ बनाने के पीछे इंटेंट क्या था, बस ये देखा जाएगा कि लॉ बना है या नहीं। तो देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को मैं और इसको डिकंस्ट्रक्ट करता हूं। सबसे पहला चीज समझो कि तुम्हारा राइट लेने के लिए लॉ बना है या नहीं बना है। चलो, लॉ बना हुआ है। दूसरा चीज देखा जाएगा कि किसने बनाया है, कंपिटेंट ऑथोरिटी कौन है। जैसे मान लो कोई यूनियन लिस्ट है जिसपे स्टेट ने बना दिया लॉ, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। कोई स्टेट लिस्ट है जिसपे सेंटर ने बना दिया लॉ, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो कंपिटेंसी देखी जाएगी कि कौन है कंपिटेंट ऑथोरिटी। थर्ड चीज देखा जाएगा प्रोसीजर। जैसे मान लो हमारे पास प्रोसीजर है ना लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए कोई लॉ, कोई स्पेशल से, कोई स्पेशल एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये तीन चीज देखा जाएगा। अगर ये तीन चीज सही है, तीन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ द लॉ is passing these three different hurdles, then the court in India or the Supreme Court will abide by the procedure established by the law without going into the intent of the law. It simply means that the Supreme Court will not make an assessment that whether the law is fair or not। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सेक्शन 377 है, इसके लिए लॉ बना हुआ है, कंपिटेंट ऑथोरिटी ने बनाया है और प्रोसीजर से बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ अगर अप्लाई कर दे सेक्शन 377 को चेक करने के लिए, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग इनटू दिस लॉजिक दैट वेदर द लॉ इज फेयर और नॉट। ओके, लेकिन अगर सेक्शन 377 पे सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ अप्लाई कर दे, तो it may be the case that the Supreme Court will come with the conclusion that this law is arbitrary। समझ गए, ये डिफरेंस है। तो अगर मैं लिटरल वे में बोलूं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ प्लस द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री। तो इसी को अगर इक्वेशन कर दो तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माइनस द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट। अंडरस्टूड? देखो, अभी तुम और अच्छे से समझोगे इस चीज को कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है क्या, क्योंकि यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए हैं, दो सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, ए.के. गोपालर और मेनका गांधी केस। ये केस मैं बाद में बता दूंगा, इसमें कुछ नहीं है। चलो देखो, ए.के. गोपालन केस में क्या था कि ए.के. गोपालन जो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे और 1950 में गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लेके आए। अब देखो, इस पर क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर जब गए तो पिटिशनर ने बोला कि दो चीज का जवाब दे दो मुझे साहब। तो साहब ने बोला पूछो क्या सवाल है तुम्हारे। तो इन्होंने बोला, गोपालन ने, कि मुझे ये बताओ कि आर्टिकल 1921-22 लिंक अपने आप में है या नहीं, या फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो देखते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि अगर कोई लॉ किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले ले तो साहब आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से उसको देखोगे या ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ से देखोगे। अब सोचने वाली बात है कि गोपालन ने ऐसा बोला क्यों। क्योंकि देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत वो डिटेंड हो गए, जेल में चले गए। अब जेल में चले गए तो उनका राइट टू मूवमेंट चला गया। राइट टू मूवमेंट गया तो आर्टिकल 19 वायलेट हुआ। ओके, समझ रहे हो? फिर आर्टिकल 21 वायलेट हुआ क्योंकि उनकी पर्सनल लिबर्टी गई, और 22 में के तहत तो वो जेल में है ही। ओके, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि इन तीनों में लिंक है या नहीं, और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो 21 में लिखा है उसको आप देखते कैसे हो।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही क्लियरिटी के साथ बोला कि वी लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट आर्टिकल 19, 21, 22 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब लिंक नहीं है, ठीक है, समझ गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कोई भी चीज को प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के हिसाब से देखेंगे। तो गोपालन भी बोले चलो भैया जैसे देखना है तुम्हें देखो, लेकिन मेनका गांधी से रहा नहीं गया। मेनका गांधी का क्या हुआ, इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। कैसे किया गया, एक हमारे पास तुम्हें पता है पासपोर्ट एक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट एक्ट हर पासपोर्ट वाज इंपाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए। अब जो मैंने पिछली स्लाइड में तुम्हें बताया था कि 3 चीज से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ देखा जाता है। कैसे कैसे, पहला कि लॉ है या नहीं, दूसरा कंपिटेंट है या नहीं, और तीसरा प्रोसीजर जो होना चाहिए वो है या नहीं। अब पासपोर्ट एक्ट तो चलो 1920 का है, तो लेकिन देखो यहाँ पे लॉ लॉ तो है, पासपोर्ट एक्ट के तहत लिया गया है, तो बिल्कुल सही किया गया है। कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाया था, यस बनाया था, बिल्कुल सही है। प्रोसीजर फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सही है। तो अगर मैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यहां लगा दूं तो मेनका गांधी अपना केस हार जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि नहीं नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर, इट शुड नॉट बी आर्बिट्री। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है कि मेनका गांधी में इन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई किया। समझ गए। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दे दिया है, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है पंजाब का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ अप्लाई किया था। समझ गए, अंडरस्टूड। अब हमें देखना है कि जुडिशियल रिव्यू और 9th शेड्यूल में क्या रिलेशन है। हम सबको पता है कि व्हेन द लॉ इनैक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल, इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयर कोएलो केस में बोला कि ऑल द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल ऑन or after 24th of April 1973 will be under judicial review। मतलब कि जो भी लॉ, जो भी अमेंडमेंट तुम करते हो 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद, वो सारा एक्ट जुडिशियल रिव्यू में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया आपका क्या आर्गुमेंट है, इसके ऊपर क्या लॉजिक है, ऐसे ही आ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम 2 चीज देखेंगे। तो पूछा गया क्या 2 देखोगे? उन्होंने बोला कि जो भी लॉ आप डालोगे 9th शेड्यूल में, तो हम देखेंगे कि वेदर दैट लॉ वायलेट आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 और नॉट। सेकंड उन्होंने बोला कि हम देखेंगे फिर कि इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। 2 चीज देखेंगे। तो फिर बोला गया कि देखोगे कैसे, क्या पैरामीटर है देखने का आपका? तो उन्होंने बोला कि हम राइट टेस्ट लगाएंगे और एसेंस ऑफ राइट टेस्ट लगाएंगे। अब देखो राइट टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। मान लो एक कोई लॉ है ए, अब इसको वैलिड और वाइड डिक्लेयर करना है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हो गया लॉ। सुप्रीम कोर्ट देखेगी ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है या नहीं कर रही है ये लॉ। अगर वायलेट नहीं कर रही है तो इसको वैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से रहा नहीं गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, अभी मैं एक चीज और करूंगा, एक इन्वेंशन और करूंगा, और ये है एसेंस ऑफ राइट टेस्ट। तो बोला भाई साहब ये क्या है? उन्होंने बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि हर चीज बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा नहीं है, लेकिन उसका एक एसेंस कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से डिराइव होता है। तो अगर वो भी वायलेट होगा ना, तब भी हम किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले सकते हैं। तो बोला गया एसेंस ऑफ राइट टेस्ट का कोई एग्जांपल दो। जैसे तुम भी मुझसे पूछोगे सर आपने बड़ी बड़ी बातें कर दिया, बताओ मुझे एग्जांपल। तो एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें। देखो बेसिक स्ट्रक्चर का जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, कैन वी से दैट देयर कैन बी रूल ऑफ लॉ विदाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ? नहीं।
तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी होना चाहिए। अगर इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं है तो ये आपका रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो ये एसेंस है रूल ऑफ लॉ का। इसी तरीके से सेकुलरिज्म भी पहले तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। समझ रहे हो ना चीजों को? तो वो एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट को भी अप्लाई करेगी किसी भी लॉ को जो 9th शेड्यूल में रखा हुआ है उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए। So this is the understanding of the judicial review. In the next video, I will talk about judicial activism and judicial overreach. एक चीज बस मुझे बता देना कि whether you people like in English or bilingual or in Hindi only, ताकि मैं देख रहा हूं कि पता नहीं मुझे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या। And I always believe that the students must appreciate whether we are doing, maybe we are doing a very hard work, but it must be appreciated by you, and our entire energy is based on your feedback. I hope you are understanding. So kindly put in the comment that whether you like it or not. Okay, thanks a lot.